کہ ہم اپنے بادشاہ کی آواز کو سنیں، اور یہ خدا کا فضل، خدا کا طرز، خدا کی مہربانیاں ہیں۔ اور ہمیں بڑی خوشی ہوگی کہ اگر ہماری کلیسیا میں سے جیسی کوہیر ہے اور جیسے آپ ہیں، اگر آپ میں سے کوئی میٹنگ لیڈ کرنا چاہتا ہے، کوئی پرسش کرنا چاہتا ہے، تو وہ آگے آ سکتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا کام ہے اور ہم نے مل کر کرنا ہے، اور خدا ہمیں کیا دیں گے؟ فضل دیں گے۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ اے خداوند میرے ہونٹ ناپاک ہیں، تو مجھے پاک کر۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ اے خداوند میرے ہونٹ جو ہے وہ ناپاک ہے، آپ میرے ہونٹوں کو کیا کیجئے؟ پاک کیجئے۔ جب پاک ہو جائیں گے تو خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ آئے میں سال نکالیے یسایہ کی کتاب، اس کا 6 باب، اور بڑی شکر گزاری کرتے جو خدا نے اپنے بندہ کو چیلنج دیا ہے، جس کا نام دا اوے آف جیزس لائف ہے، اور شکر گزاری کرتے کہ اس کے ذریعہ سے خداوند اپنے جلال کو ظاہر کر رہے ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ خدا کے کلام کو سن کر تقویت پا رہے ہیں، خدا کی بلیسنگ کو رسیو کر رہے ہیں، اور یہ سارا جلال یسوع مسیح کے نام کو ہے کہ خدا ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں جن کے ذریعہ سے ہم مسیحا کے کلام کو جو ہے وہ سن سکے اور خدا کے جلال میں بڑھنا شروع ہو جائے۔ کیونکہ ایک وقت آئے گا، خدا کا کلام بھی یہ فرماتا ہے، سکھاتا ہے کہ دنیا میں سے کلام جو ہے وہ غائب ہو جائے گا۔ اس وقت روٹی بھی کھلی جو ہے وہ ملے گی، ہر چیز ملے گی، لیکن خدا کا کلام اس وقت نہیں ملے گا۔ لوگ جو ہے وہ تڑپیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے اور کہیں گے ہم نے خدا کے کلام کو سیکھنا ہے، اس وقت ہمارے پاس وقت نہ رہے گا۔ ہاں جی، یسایہ کی کتاب، اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت جو ہے اور نکال لیا، 5ویں آیت سے لے کر آپ 8ویں آیت تک جو ہے وہ پڑھ دیجیے۔ تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہے اور نجس لب لوگوں میں پھنستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفوج کو دیکھا۔ تم اس وقت سرافین میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا، اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہوا۔ اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا کہ میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ تب میں نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ خدا ان کے پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت آپ سبوں پر ہو، سب بولے آمین۔ بلند آواز سے بولے آمین۔ کیا آپ خوش ہیں؟ زوردار تالیاں یسوع مسیح کے جلال کے لیے۔ خداوند آپ کو اسی طرح خوش رکھے اور خداوند آپ کو اسی طرح خوشیاں پرووائڈ کرے، کیونکہ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں، اے خداوند تو مجھے پاک کر۔ یہاں پر لکھا ہے جو خدا کا بندہ یسایہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کا ایسا سرما ہے کہ خدا نے اس پر اپنے رازوں کو، اپنے مکاشفہ کو، اپنے بیٹوں کو پہلے سے عیاں کیا، اور اس نے یسوع مسیح کے بارے میں بے شمار پیشن گوئیاں جو ہیں وہ کی ہیں۔ خدا کے بندہ یسایہ کے نام کا مطلب ہے یہوہ نجات جو ہے دیتا ہے، اور یسایہ جو ہے اس نے سب سے زیادہ یسوع مسیح کی پیشن گوئیاں جو ہے وہ کی ہیں کہ یسوع مسیح کا یعنی کہ اس دنیا کے اندر جب یسوع مسیح آئیں گے، یسوع کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ بے شمار پیشن گوئیاں خدا کے بندہ نے جو ہے وہ کی ہیں، اور یسایہ کو جو بھی پولس رسول خدا کے خادم کہتے ہیں کہ جو مسیح یسوع میں دینداری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں وہ سب جو ہے وہ ستائے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یسایہ جو ہے اس کی شہادت جو ہے وہ کیسے ہوئی ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟
कैसे जो है इनकी शहादत हुई है? बुलंद आवाज से बोले कैसे हुई है? अच्छा, आपने ये सवाल तो बिल्कुल ठीक बताया है, लेकिन कैसे चीरा गया? हाँ जी बताइए। अच्छा, चले खुदा की शुक्रगुजारी करते कि जो खुदा के कलाम को सीखने वाले खुदा के लोग हैं, इन्होंने इस बात को जो है दिल के अंदर रखा हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से खुदा के लोगों को जो है वो तफसील से बताऊँ, ताकि इनको भी समझ आए, और जब इस बात को बयान किया जाए दोबारा से, तो ये इस बात को जो है वो मिलकर बयान कर सके। यसाया जो है, खुदा ने इसको बड़ी दलेरी दी, और बादशाह के पास, बादशाह का क्या नाम था आपको याद है? बताइए। हाँ जी, क्या नाम है? नमरूद बादशाह किधर से आ गया? बादशाह का नाम है मनस्सी बादशाह। क्या नाम है जी? हिजकिय्याह का बेटा जो है वो मनस्सी बादशाह था, और मनस्सी जो है वो खुदा के लोगों यानी कि खुदा के हुक्मों पर ना चलता। उसका बाप जो है वो खुदावंद के हुक्मों पर चलता, खुदा की वडेयाई करता, खुदा की शुक्रगुजारी करता, और मनस्सी जो है वो इसके उल्ट था। वो ना खुदा से डरता, ना इंसानों की परवाह करता, ना खुदा से जो है वो दुआ करता। और यसाया जो है, इसने जो है वो मनस्सी बादशाह से कहा कि तू इस कदर क्यों नाफरमानियां करता है। यसाया खुदा का बंदा जो है वो डरा नहीं है कि अगर मैं बादशाह को यूं जवाब देगा तो बादशाह मुझको कत्ल कर देगा। एक दिन क्या हुआ, हिस्ट्री के अंदर ये लिखा है कि बादशाह जो है, एक दिन उसको गुस्सा आ गया। क्या आ गया जी? बुलंद आवाज से बोले क्या आ गया? कलाम के अंदर लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई को क्या करेगा? क्या करेगा जी? देखेगा। और जिसका तवक्कुल खुदा के बेटे यीशु नासरी पर है, वो शख्स क्या है? वो शख्स क्या है जी? आप घर में जाकर अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से कहेंगे कि आज कलाम का बहुत ज्यादा मजा आया है। क्या कहेंगे जी? सादी जी क्या कहेंगे? आज कलाम के वसीला से क्या आया है? बड़ा मजा आया है। तो घर वाले कहेंगे कलाम की सी, कहेंगे है नहीं पता, तो मजा का आया है। क्योंकि जब आप खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं देंगे, खुदा के कलाम को नहीं सुनेंगे, क्योंकि कलाम यह फरमाता है कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला क्या है जी? बुलंद आवाज से बोले क्या है? क्या आप मुबारक है? तो आप बुलंद आवाज से बोल सकते हैं क्या है जी? आप हम मुबारक लोग हैं। खुदा ने हमें अपने काम के लिए मुकर्रर किया है, और ये खुदा का क्या है जी? फजल है। और जब बादशाह को एक दिन बड़ा गुस्सा आया, बादशाह ने कहा कि ये होता कौन है जो मुझे लेक्चर देने वाला? ये होता कौन है मुझे कलाम को सुनाने वाला? मैं तो बादशाह हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको मार डालूँ, जिसको चाहूँ उसको मैं छोड़ दूँ, अब मैं उसको मार डालूंगा। इसने मेरा जीना हराम कर दिया। सच्ची बात है कि जो खुदा के कलाम की सीधी बातें जो है वो सिखाता है, वो उस इंसान को सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा उसका क्या लगता है? उसको दुश्मन लगता है। तो जो है हिस्ट्री के अंदर लिखा है, बादशाह यानी कि बादशाह और बादशाह के पीछे उसकी पलटन है, और आगे जो है वो खुदा का बंदा यसाया है, वो किसी जंगल में जाकर छुप गया। यानी कि आगे कौन है? यसाया है। उसके पीछे कौन है? बादशाह। यानी कि बादशाह के पीछे उसकी सारी पलटन है, उसकी सारी फौज है, और वो भागता भागता किसी जंगल में जाकर छुप गया। कहाँ पर जाकर छुप गया? कहाँ पर जाकर छुप गया जी? जंगल में। और जब वो जंगल में जाकर छुप गया तो बादशाह ने कहा, हमने देखा है कि वो इसी एरिया के अंदर जो है वो छुपा होगा, और जंगल के अंदर जो है आपने जो है वो सुना होगा या देखा होगा कि बेशुमार कटे दरख्त होते हैं कि नहीं? हाँ होते हैं ना। वो कटे दरख्तों के जाकर अंदर छुप गया, और बादशाह ने जो है वो ऐलान किया कि आरे जो है वो दरख्तों को काटने के लिए बुलाए जाए।
جب وہ مزدور آڑے لے کر آئے اور اس ایریا کے مطابق انہوں نے ایک ایک کر کے جو ہے وہ درخت کو کاٹا، جب وہ کاٹتے گئے اسی طرح اس یعنی کہ جو ہے وہ کٹے درخت کے اندر جو ہے وہ خدا کا بندہ چھپا ہوا تھا، اس کو درخت کے اندر ہی جو ہے جیسے درخت کو کاٹا گیا اس کو بھی جو ہے یوں ہی اس کو جو ہے وہ کاٹ دیا گیا، ایسے اس کی شہادت ہوئی اور وہ آڑے کے ذریعہ سے کیا ہوا، اس کی کیا ہوئی جی، شہادت ہوئی۔ ایسے اگر ہم جو ہے وہ یسایہ کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ ایسے جو ہے اس کی شہادت ہوئی ہے۔ عبرانیوں کے ہاتھ کے اندر لکھا گیا ہے کہ کچھ آڑے سے چیرے گئے، لیکن جو خدا کے کلام کو سیکھنے والے ہیں جب ہم یسایہ کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں یوں جو ہے وہ ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے 5ویں آیت کے اندر لکھا ہے، تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، کیا جی مجھ پر، میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہے، نہ جس لب لوگوں میں جو ہے میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الفاظ کو دیکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے پرانے عہد نامہ کے اندر اگر کوئی انسان، ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان جو ہے وہ کسی بادشاہ یعنی کہ کوئی انسان جو ہے وہ کوئی فرشتے کو دیکھتا تو وہ اسی وقت جو ہے وہ مر جاتا، جیسا کہ جدعون نے خدا کے فرشتہ کو دیکھا، اس نے کہا ہائے میں برباد ہو گیا، مجھ پر افسوس ہے کیونکہ میں نے خدا کے فرشتہ کو دیکھا ہے۔ اور فرشتہ نے جدعون سے کہا مت ڈر، خدا نے تجھے مارنے کے لیے نہیں، خدا نے تجھے تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے کام کے لیے کیا کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں۔ اور آج ہمارا ٹاپک مضمون عنوان بھی یہی ہے کہ اے خدا میرے ہونٹ ناپاک ہے، اے خدا تو مجھے پاک کر دے۔ پھر جو ہے اس کی شہادت کو پڑھنے میں جو ہے وہ ساتھ دیجیے۔ ہاں جی، پھر خدا نے جو اپنے فرشتے مقرر کیے، خدا نے جو ہے ایک فرشتہ کو مقرر کیا، اور خداوند نے کیا کہا، جو ہے وہ خدا نے اس کو جو سکھایا فرشتہ کو، خدا نے جو کہا اس نے وہی کیا، اور اس نے اس مذبح پر سے جو ہے اس کولے کو اٹھایا، اور کلام کے اندر لکھا ہے اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ اس قدر یہ خدا کا سورما ہے۔ خدا نے اپنے بندہ یسایہ کے ساتھ جو ہے وہ روب خداوند نے باتیں کی ہیں، اور یہ خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہونٹ ناپاک ہے، ہم تو ان خدا کے ہاتھوں کی پاؤں کی بھی جو ہے وہ ہاتھ بھی نہیں ہے، ہمیں کس قدر دعاؤں میں جھکنا ہے اور کس قدر ہم نے دعائیں کرنی ہے، اور خدا سے کہنا ہے کہ اے خدا میرے ہونٹوں کو کھول دے تاکہ میرے لبوں سے تیری ستائش نکلے۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند نے کیا کیا، خداوند نے فرشتے کو مقرر کیا اور اس نے اپنا فرشتہ جو ہے وہ بھیجا، اور جب خداوند نے اپنے فرشتے کو مقرر کیا اس نے جو ہے یہاں پر لکھا ہے اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا ہے، بس تیری بدکاری جو ہے وہ دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے کہ یسوع کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ جب ہم یسوع کے لہو کو اپنی زندگیوں کے اوپر مانگ لیتے ہیں تو خدا ان کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا دیکھ اس نے تیرے لبوں کو چھوا،
जब उसने खुदावन से कहा कि मालिक मैं तैयार नहीं हूँ, मेरे होंठ नापाक है, मैं तो इस लायक नहीं कि मैं इस काम को कर सकूँ, लेकिन खुदावन ने जिस रूह से, खुदावन ने जिस जान से, जिस बदन से, जिस बेटी से, जिस बेटे से, जिस बुजुर्ग से, जिस भाई से, जिस बहन से खुदा ने काम लेना है, खुदा ने से काम लेना ही लेना है, क्योंकि वो मालिक है, वो जो चाहे वो करने की कुदरत रखते हैं। और यहाँ पर लिखा है, बस तेरी बदकारी दूर हुई और तेरे गुनाह का कफारा हो गया। जैसे कि हम मूसा को देखते हैं, उसने कहा मालिक मेरी जुबान जो है मैं बोल नहीं सकता, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। उसने कहा मालिक मैं ये काम नहीं कर सकता। और खुदा ने कहा कि मैं तेरा खुदा और तू हारून का खुदा, मैं तुझसे कलाम करूंगा। तो हारून से जो है वो कलाम करना, और हारून जो है वो लोगों से कलाम करेगा, और मेरा मंसूबा खुदा के लोगों पर क्या होगा, जाहिर होगा। ए खुदा मेरी जो है वो मेरे होठों को पाक कर दे, ताकि मैं तेरे जलाल को जो है वो देख सकूं। हम दूसरा हवाला निकालेंगे, इफ्सियों के नाम हाथ, उसका 4 बाब, उसकी 29वीं आयत जो है वो पढ़ने में रहनुमाई कर दीजिए। उसकी 29वीं आयत। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलिसी के दिन के लिए मोहर हुई। हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोरगुल और बदगोई हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमें यूँ सिखाते हैं कि हम खुदा हम अपने होंठों को जो है वो कैसे काबू में कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे दुनिया के कामों से रोक सकते हैं। और यहाँ पर जो आयत मुबारका आपके सामने पढ़ी गई है, इस आयत मुबारका के अंदर लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए क्या हो जी, अच्छी हो। क्या हो जी, अच्छी हो। बुलंद आवाज से बोले, क्या हो, अच्छी हो। ताकि उससे सुनने वालों पर जो है वो फजल हो, सुनने वालों पर खुदा का क्या हो जी, क्या हो जी, बुलंद आवाज से बोले, फजल हो। यहाँ पर लिखा है, और आज हमारा टॉपिक मज़मून अनवान ये है, मेरे होंठ नापाक है, ए खुदा तो मुझे मेरे होंठों को पाक कर दे। और यहाँ पर लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर खुदा का फजल हो और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो। कलाम के अंदर लिखा है कि इंसान जो है बातों बातों में क्या करता है जी, खता करता है। और यहाँ पर लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि मत्ती के अंजील के अंदर लिखा है, हर एक गंदी बात का क्या होगा, हिसाब होगा। क्योंकि जब हम मुकाशवा की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, किताबें यानी किताबों के अंदर लिखा जा रहा है, फिर वहाँ पर लिखा एक और किताब खोली गई यानी किताब हयात। और यहाँ पर लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। दुनिया के जो लोग हैं वो बड़े बड़े फलसफे, बड़े बड़े कहानियाँ सुनाते हैं, और ईमानदार को समझते हैं कि इनको कुछ नहीं पता। क्या समझते हैं ईमानदार को जी, गंदबाज से बोले, क्या समझते हैं ईमानदार को? वो लोग समझते हैं कि हम बड़े ज़हीन हैं, हम बड़े अक्लमंद हैं, और ईमानदार को वो कुछ नहीं समझते। यहाँ तक कि ईमानदार जो है वो खुदा को खुश करने के लिए वो अपने मुंह को जो है वो लगाम देता है और खुदा से कहता है, ऐ खुदा मेरी मदद कर, ताकि कोई ऐसा काम मुझसे ना हो जाए जिससे मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाए। और यहाँ पर लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो।
ताकि उससे सुनने वालों पर खुदा का क्या हो जी, फजल हो। बेशुमार ऐसे लोग हैं जब आपस में बैठते हैं उनकी निकम्मी बातें जो है वो कम ही नहीं होती। वो एक को बता को कहते हैं ये बात जो है किसी को ना बताना। क्या करते हैं, एक को बात बताते हैं और कहते हैं बहन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, ये बात किसी को ना बताना। वो आगे जो है उसको बताती है और कहती है मैं ये आपको बात बता रही हूँ, आगे किसी को ना बताना। करते 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 पूरे मोहल्ला के अंदर वो बात फैल जाती है और जिसको जब वो बात जो हमने नहीं करनी होती जब पता चलता है इस बहन ने या इस भाई ने की है, वो तो कहते हैं मैंने तो सिर्फ एक को बताया था। इसलिए हमने बड़े सोच समझ कर रहना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए क्या हो जी, अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर खुदा का फजल हो। खुदा के पाखरू को रंजीदा ना करो जिससे तुम पर मोहलसी के दिन के लिए मोहर हुई। ऐ खुदा मेरे होंठ नापाक है, तू मुझे क्या कर, पाक कर दे। जब हम खुदा से कहेंगे तो खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर होगा। जब खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर होगा, खुदा की कुदरत हमारी ज़िंदगियों में काम करेगी। हालेलुया। ज़बूर 141 निकालिए। निकाल लिया। ज़बूर 141 उसकी तीसरी और चौथी आयत जो है वो पढ़ दीजिए। ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर, मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ मायल ना होने दे कि बदकारों के साथ मिलकर शरारत के कामों में मसरूफ़ हो जाए और मुझे उनके नफीस खाने से बाज रख। आमीन। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों हमने जो है वो पढ़ा है और इस आयत को हमने सीखा है और सुना है। यहाँ पर लिखा है ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर, मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ मायल ना होने दे। खुदा का बंदा दाऊद कहता है ऐ खुदावन मेरे मुंह पर क्या बिठा जी, पहरा बिठा। जब किसी प्रोग्राम पर जाते हैं और बाहर जो है वो प्रोग्राम के दरवाज़ा के बाहर जो अगर सिक्योरिटी गार्ड होता है, अगर मालिक जो है वो उसको कह दे कि आपने शख्स को जो है वो दाखिल नहीं होने देना, तो आप यह बताएं कि आप दाखिल हो जाएंगे? हो जाओगे, डंडे खा के हैं हो जाओगे। लेकिन वो यानी कि कहने का मकसद ये है कि वो दाखिल जो है वो नहीं होने देगा। इसी तरह खुदावन ने जो अपने आसमान पर फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, खुदा अपने फरिश्तों की ड्यूटी लगा देंगे ताकि खुदावन का जलाल आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या हो जी, ज़ाहिर हो। लेकिन आपको ये दुआ करनी पड़ेगी। क्या खूबसूरत खुदा के बंदा ने दुआ की है कि ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर, मेरे दिल को किसी बुरी बात की तरफ मायल ना होने दे। क्योंकि वो जानता था कि खुदा के बंदा यशाया ने ये दुआ की है कि मेरे होंठ नापाक है और मुझे भी ये दुआ करनी है ताकि खुदा मेरे होंठों को जो है वो पाक और साफ कर दे और खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर ज़ाहिर हो। यहाँ पर लिखा है जब हम खुदा की हजूरी के अंदर झुकते हैं तो हमारी बहुत बड़ी लिस्ट होती है कि खुदा मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। आमीन। लेकिन दाऊद ने क्या खूबसूरत जो है वो दुआ की है और यहाँ पर लिखा है ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर। मैं चाहता हूँ हम बुलंद आवाज़ से जो है दाऊद की तरह इस दुआ को आप मेरे पीछे जो है वो पढ़िए। ऐ खुदावन, आवाज़ कम है, ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर, मेरे दिल को
बुरी बात की तरफ किसी बुरी बात की तरफ माइल ना होने दे। माइल ना होने दे। ऐ खुदावन ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा। मेरे मुंह पर पहरा बिठा। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, दाऊद ने क्या दुआ की? खुदा के बंदा दाऊद ने कहा, ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर। जब हम जो है ये दुआ करेंगे कि मालिक हमारे मुंह पर पहरा बिठा दे, हमारे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर, तो खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों के अंदर क्या होगा जी? ज़ाहिर होगा। जैसे खुदा के बंदा यसाया ने कहा कि मेरे होंठ नापाक है, ऐ खुदा तू मुझे पाक कर। जब खुदा पाक करता है तो खुदा उनका जलाल उनकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर होता है। हम जो है एक और हवाला देखेंगे, सफननिया की किताब उसका 3 बाब, आज निकाल लिया, उसकी नामिया जो है वो पढ़ने में रहनुमाई कर दीजिए। तीसरा भावना। जी। और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदावन से दुआ करें और यकदिल होकर उसकी इबादत करें। आज दोबारा पढ़ दीजिए। और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदावन से दुआ करें और यकदिल होकर उसकी इबादत करें। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है, और मैं उस वक्त लोगों के होंठ क्या करूँगा जी? पाक करूँगा। और आज हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि मेरे होंठ नापाक हैं, ऐ खुदावन तू मुझे पाक कर दे। और यहाँ पर लिखा है, और मैं उस वक्त लोगों के होंठ पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदावन से क्या करे? दुआ करे और एक दिल होकर उसकी क्या करे जी? इबादत करे। जैसा कि हरूज की किताब के अंदर लिखा है कि अगर तू मेरी इबादत करे तो मैं तेरी रोटी और पानी पर क्या दूंगा? बरकत दूंगा, और तेरे बीच से जो है वो तमाम बीमारियों को क्या कर दूंगा? दूर कर दूंगा। खुदावंद खुदा ने ये इसलिए क्यों कहा? खुदावंद खुदा ने इसलिए कहा क्योंकि लोग जो है कोई हवा की पूजा करते, कोई चांद की पूजा करते, कोई सितारों की पूजा करते, कोई जो है वो बारिश की पूजा करते, कोई ज़मीन की पूजा करते, कोई आसमान की पूजा करते, लेकिन खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करते, हम उसकी पूजा करते हैं जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं। हालेलुया। हम उसकी पूजा करते हैं जिसने सारी चीज़ें बनाई है। और खुदावन ने अपना जो है उनको अपना आप उनको जाहिर किया कि तुम मेरी इबादत करना, ना किसी चीज़ की इबादत करना। और यहाँ पर लिखा है, और मैं उस वक्त लोगों के होंठ क्या करूँगा? पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदावन से दुआ करें और एक दिल होकर उसकी क्या करें? इबादत करें। जब हम जो है इस स्टोरी को पढ़ते हैं तो खुदावंद खुदा जो है वहाँ के जो यहूदा के जो लोग थे वो गैर मबूदों की जो है वो परस्तिश करते, अपने लबों से उनको उनकी तारीफ करते, उनकी तमजीद करते, और खुदावन ने उनको सज़ा देकर खुदा ने फिर बहाल किया। और बहाल करने के बाद खुदा ने उनसे क्या कलाम किया? यहाँ पर लिखा है, और मैं उस वक्त लोगों के होंठ क्या करूँगा? पाक कर दूंगा ताकि वो सब खुदावन से दुआ करे और एक दिल होकर उसकी क्या करे? इबादत करे। जैसा कि हीरा जो है वो कलीसिया को मोटिवेट कर रहे थे कि हमने मिलकर दुआ करनी है, क्योंकि मिलकर दुआ करने से जुए बंधन जो है वो टूटते हैं और खुदावन का जलाल जो है वो ज़ाहिर होता है। पलूस और सलास ने मिलकर दुआ की, अजीब काम होना शुरू हो गए। इसी तरह हमने मिलकर दुआ करनी है ताकि खुदावन का जलाल ज़ाहिर हो। और यहाँ पर लिखा है ताकि वो सब खुदावन से क्या करे? दुआ करे और एक दिल होकर उसकी इबादत करे, क्योंकि ज़बूर 100 के अंदर लिखा है, ए अहले ज़मीन सब खुदावन के हज़ूर खुशी का नारा मारो और खुशी से खुदावन की क्या करो? इबादत करो। याकूब का आम हक उसका 3 बाब और उसकी आप जो है वो
6 आयत से पढ़ना शुरू कर दीजिए, 6 आयत से लेकर 10 आयत। जी जी, तीसरा बाब 6 से 10 आयत तक। जुबान भी एक आग है, जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायराए दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाए जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई काबू में नहीं कर सकता। हाँ जी, ये दोबारा 8वीं दोबारा पढ़ दीजिए, क्या लिखा है? मगर कोई जुबान को कोई आदमी काबू नहीं कर सकता। हाँ जी, ये जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है, इसलिए खुदा का बंदा यसाया कहता है कि मेरे होंठ नापाक है। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि खुदा मेरे होंठों पर जो है वो पहरा बिठा दे और मेरे लबों के दरवाज़ा की क्या कर जी, निगाहबानी कर। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावन और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बददुआ देते हैं। एक ही मुँह से मुबारकबाद और बददुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। आमीन। यहाँ पर मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीख रहे हैं कि मेरे होंठ नापाक हैं, ऐ खुदा मुझे पाक कर। और यहाँ पर लिखा है कि इंसान से जो है हर किस्म के छुपाए परिंदे, कीड़े मकोड़े, दरियाई जानवर और हर किस्म की चीज़ें जो है इंसान के काबू में आ सकती है। अगर इंसान बड़ा खूबसूरत हो लेकिन उसकी ज़ुबान अगर खूबसूरत ना हो तो कैसा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? है बड़ा खूबसूरत लेकिन ज़ुबान बड़ी चलती है। इसलिए हमने अपनी ज़ुबान को क्या करना है? काबू में हम नहीं कर सकते। खुदा का बेटा हमें फजल देगा और खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर होगा। ज़ुबान ही है जो तहत पर बिठाती है, ज़ुबान ही है जो नीचे गिरा देती है। ज़ुबान यहाँ पर लिखा है कि एक ही मुंह से हम मुबारकबाद और जो है मुबारकबाद और बददुआ जो है वो निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, हमने ऐसा नहीं करना। और 6 आयत के अंदर लिखा है ज़ुबान भी एक आग है, ज़ुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगा देती है और दारा दुनिया को जो है वो दारा दुनिया को आग में जो है वो आग लगा देती है। और यहाँ पर लिखा है क्योंकि हर किस्म के छुपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं। हम देखते हैं अगर चिड़ियाघर के अंदर जाने का किसी का इत्तेफाक हो तो इंसान से भी बड़े बड़े जोरावर जो है वो जानवर उन्होंने जो है वो पकड़े होते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े जहाज जो है वो कौन उसका कंट्रोल उसको करता है? इंसान करता है। ट्रेन जो है उसको कंट्रोल कौन करता है? इंसान करता है। लेकिन इंसान की ज़ुबान अगर कंट्रोल में ना हो तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात उसकी ज़िंदगी के अंदर आ सकती है। और ज़ुबान अगर कंट्रोल नहीं होगी तो खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर नहीं होगा। मैं किताब के अंदर पढ़ रहा था, एक जो है वो जो है एक हादिम ने इस बात को बयान किया कि एक जो है वो भाई था और उसकी बीवी और उसकी जो लड़के की जो माँ है, आपस में उनकी बहुत ज़्यादा पैसे तकरार होती। अगर माँ जो है वो 4 बातें करती और उसकी बीवी जो है वो 8 बातें करती। पैसे तकरार कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ते जो है वो रिलेशन टूटते जा रहे और जो है वो मोहब्बत जो है वो कम होती जा रही थी। वो शख्स जो है वो अपनी बीवी को जो है एक हादिम के पास लेकर गया, एक खुदा के जो है वो हादिम के पास लेकर गया और उसने कहा कि आप जो है जब आपकी यानी कि आपकी माँ आपको बातें करे, आपने बोलना नहीं है, आगे से आपने उसकी बातें सुनकर मुस्कुराना है। क्या करना है? काम तो मुश्किल है लेकिन करना है तो काम चलेगा। क्या करना है जी? मुस्कुराना है। फिर जो है वो कुछ दिनों के बाद जो है उनकी बहसें तकरार हुई। वो लड़के की जो माँ है उसको बातें सुनाते जा रही है। लड़की जो है उसने कहा चले मैं खुदा के हादिम की बात को मान ही लूँ। उसको जब बातें वो सुनाते जा रही है और उसकी माँ जो है उसने देखा कि ये मुस्कुरा रही है
کچھ ہی جو ہے وہ منٹوں کے بعد اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے اتنی باتیں سنائی ہیں اور تو نے جو ہے مجھے میری عزت کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ جب آپ پریکٹیکل کریں گے تو خدا ان کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اور یہاں پر لکھا ہے مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا، وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں۔ پھر یہاں پر لکھا ہے 9 آیت کے اندر اسی سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں اور اسی سے آدمیوں کی جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بددعا دیتے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیزو آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں کہ اے خدا میرے ہونٹ ناپاک ہیں، تو مجھے کیا کر جی پاک کر۔ دیکھیں ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی ایسی جو ہے وہ ایسی گفتگو ہو جاتی ہے، ایسے کام ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب آپ اور ہم اور کلیسیا اور لوگ جو ہیں وہ خدا کی حضوری کے اندر جھک جائیں گے، خدا سے کہیں گے خدا ہمیں زور دے دے، خدا ہمیں تقویت دے دے، خدا ہمیں اپنے جلال کی قدرت سے جو ہے وہ بڑھ دے۔ اور میں شکر گزاری کرتا خداوند یسوع ناصری کی کہ خداوند اپنے لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ زور دیتے ہیں۔ اگر ہم جو ہے وہ ازدواجی زندگی کے بارے میں دیکھیں، اگر شوہر کو غصہ آ گیا ہے، اس کی بیوی جو ہے اس کا وہ اپنا منہ جو ہے وہ بند کر لیتی ہے۔ اگر جو ہے وہ بیوی کو غصہ آیا ہے تو شوہر جو ہے وہ اپنا منہ بند کر لیتے ہیں۔ اگر دونوں کی زبان بند نہیں ہوتی تو وہاں پر بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے، اور پھر وہ پورا محلہ ان کی آوازیں سنتے ہیں اور خدا کے نام کی کیا ہوتی ہے؟ وہاں پر بدنامی ہوتی ہے۔ اس لیے جب آپ کو غصہ آئے، یعنی کہ یہ کلام میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، تو ہم نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری کے اندر لے کر آنا ہے اور خدا سے کہنا ہے خدا ہمیں فضل دے۔ جب خدا فضل دیں گے، پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک فیملی نے مجھے دعا کے لیے وہ لے کر گئے، اور ان کی بیٹی کو جو ہے وہ ایک وقت کا جو ہے وہ 10,000 کا جو ہے وہ ٹیکہ اس بیٹی کو لگتا، چھوٹی سی بچی جو ہے وہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو ہے 25 دن یہاں پر رہے گی، پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، آپ کو جو ہے اس کو گھر کے اندر اس کو بیچ دیں گے۔ اور ایک ٹائم کا جو ہے وہ 10,000 جو ہے وہ ایک ٹیکے کا جو ہے وہ ڈاکٹروں کو مل رہا ہے، انہوں نے کہیں دل کرنا کسی کو چھڈن دے۔ تو جب میں ان کے گھر میں دعا کے لیے گیا، میں نے ان سے کہا کہ خدا کا روح فرماتا ہے، ان کے جو ہے اس بھائی سے کہا، اس بہن سے کہا، میں نے کہا کہ آپ متفق ہو کر دعا کرے اور خدا کا جلال صبح ہونے تک خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر کیا ہوگا؟ ظاہر ہوگا۔ اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے تو یہ بولا ہے۔ میں نے کہا جو بھی اس نے بولا ہے، لیکن جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، خداوندوں کا خدا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی زبان مسیحا کے لیے کھولیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنا منہ خوب کھول تو میں اسے بڑھ دوں گا۔ جہاں پر ہمیں منہ کھولنا چاہیے اتنے اسی کھولتے نہیں، تے جدوں لڑائی ہوندی ہے پھر اسی لوگ کہتے ہیں کہ واقعی ایماندار ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے خدا سے کہنا ہے، اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنی زبان کا غلط استعمال کر دیا، آپ کی ساری محنت مٹی کے اندر مل جائے گی، آپ کے خدا پر انگلی اٹھائی جائے گی، اور خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ جیسے کہ شاگرد جو ہے جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا تو شکایت کس کے پاس آتی؟ بتائیے، یسوع مسیح کے پاس آتی۔ انہوں نے بغیر ہاتھ دھوئے جو ہے وہ کھانا کھا لیا، یسوع مسیح کے پاس شکایت آ گئی، ٹھیک ہے۔ بدروہیں شاگردوں سے نہ نکلی، یسوع مسیح کے پاس آ گئے، اور شاگردوں نے نعرہ بلند کیا ہوشنا ابن داؤد، تو یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ یسوع ان کو چپ کروا۔ یسوع نے کہا اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اسی طرح جب بچوں سے مسٹیک ہوتی ہے تو وہ شکایت جو ہے ماں باپ پر آتی ہے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جب ہم ایسی حرکات کریں گے ہمارے باپ، ہمارے خداوند یسوع مسیح پر انگلی اٹھائی جائے گی اور خدا کا نام جو ہے وہ بدنام ہوگا۔ اس لیے ہم نے اس بات پر غور و فکر کرنی ہے، اگر کریں گے تو خداوند کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوگا۔ اور جو میں نے آپ کو بھی وہ گواہی بتائی ہے، جب دعا کی انہوں نے متفق ہو کر دعا کی، خدا کے بندہ نے جو ہے خداوند نے اپنے بندہ کو فضل دیا۔ جب میں نے دعا کی اور جب صبح جو ہے وہ 11 بجے
बड़ा डॉक्टर जो है वो आया, उसने कहा सारे टेस्ट जो है आपके क्लियर है, आप इस बेटी को घर ले जाएं। तो खुदा ने बड़ी गवाही को कायम किया, इस कदर बड़ी गवाही को कायम किया कि आज तक फिर मैंने उनसे कहा कि इब्लीस आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को तोड़ना चाहता है। क्या करना चाहता है? बुलंदआवाज़ से बोले, क्या करना चाहता है? तो आप जो है खुदा ने आपकी ज़िंदगी के अंदर इस कदर इतना बड़ा मौज़ा किया है, आप फेलोशिप के अंदर रहें। उन्होंने खुदा की आवाज़ को ना सुना, आज उनकी तलाक हो चुकी है, बच्चे किसी यानी कि बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, शोहर किसी और जगह पर है, बीवी किसी और जगह पर है। वजह क्या है? अगर वो रफ़ाकत रखते, उनके लिए दुआएं की जाती, खुदा का जलाल उनकी ज़िंदगी के अंदर ज़ाहिर होता और उनका घराना जो है वो शादमान होता, क्योंकि खुदा तन्हा को ख़ानदान बना देता है। इसलिए हमारी ज़िंदगियों में खुदा बड़े बड़े काम कर देता है, लेकिन हम जो है अपनी ऐसी हरकत की वजह से खुदा की बरकत से दूर हो जाते हैं और खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर नहीं होता। सो आज हम अपने सरों को झुकाएंगे। अगर आपको कलाम के वसीला से बरकत मिली है तो आप तालियां जाकर यीशु मसीह के नाम से